Good morning to all my dear students. Welcome you all in English class, and today in this video you will learn about modal verbs. As you know that we use main verb, helping verb and also modal verbs. So in this video you will learn what are the main verbs and helping verbs and modal verbs. What is the difference between these verbs and how can we use modals correctly. So first let's see this chart. So modal auxiliary verbs. So today's our topic is modal auxiliary verbs. So first you should understand that what are verbs. So in English, verbs can be classified into two classes, lexical verbs and auxiliary verbs. Lexical verbs means main verb. Main verb means action. जो भी हम काम करते हैं that is main verb, like come, go, eat, laugh, and we use first form, second form, third form and ing form of the main verb according to the tenses. So the use of main verb and the helping verb you have already learned in the tenses, but just to distinguish between modal auxiliaries and the lexical verbs, I am giving you a short recap here that main verb is used in first form, second form, third form and fourth form, and main verb is known as lexical verbs. And second is auxiliary verbs. So auxiliary verbs क्या होती हैं जिनको हम helping verb भी यूज़ कहते हैं and जो main verb के साथ यूज़ होती हैं. As you learned in the tenses, helping verb of each tense and main verb used with them with those helping verbs. So auxiliary verbs दो प्रकार की हो गई, lexical verbs and auxiliary verbs. जो lexical verbs हैं वो आपकी main verb हो गई और जो auxiliary verbs हैं that is helping verbs. Now again helping verbs can be divided into three parts: primary auxiliary verbs, modal auxiliary verbs and marginal auxiliary verbs. So primary auxiliary verbs are the helping verbs to do, to have and to be, means is is, am, are, was, were, has, have, do, does, has been, have been. So these verbs are used with the helping verbs and they are limited by their subjects. So main thing is that they are limited by their subject, means according to subject ही हम जो है helping verb, जो primary auxiliary verbs होती हैं, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही यूज़ किया जाता है. अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा एंड प्लूरल है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होगा. फॉर एग्जांपल इफ़ आई से आई शी इज़ गोइंग, तो शी आपका सिंगुलर है, उसके साथ हमने इज़ यूज़ किया. बट अगर हम कहेंगे दे आर गोइंग, तो दे के साथ हमने आर को यूज़ किया. सो इज़, आर, एम जो है वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ही यूज़ होगा. इसी तरह से हैज़, हैव, डू, डज, ये सब भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं. सेकेंड इज़ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, जो हमारा आज का टॉपिक है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स. सो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं? दे आर ऑल्सो हेल्पिंग वर्ब्स एंड यूज विद द मेन वर्ब, बट द डिफरेंस इज दैट दे आर नॉट लिमिटेड बाय देयर सब्जेक्ट्स, मीन्स वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होते हैं. एग्जाम्पल अभी मैं आपको बताऊंगी आगे. So can, could, may, shall, should, will, would, must, ought to. These are called modal auxiliary verbs. Third is marginal auxiliary verbs. Marginal means होता है जो बहुत कम यूज़ होती हैं. तो use to, need, dare, have to, ये कुछ auxiliary verbs होती हैं जो कम यूज़ होती हैं, इसीलिए इनको marginal auxiliary verbs कहा जाता है. तो now you can see that verbs are of two types: main verb, lexical verbs और मेन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स. सो मॉडल ऑक्सिलरीज क्या हो गया हमारा? हेल्पिंग वर्ब का ही एक पार्ट है. हेल्पिंग वर्ब जो कि हमारी प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स और मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं. तो अब हम नाउ वी विल लर्न अबाउट मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स. सो नाउ अंडरस्टैंड व्हाट आर मॉडल वर्ब्स. सो मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं आपके? कैन, मस्ट, मे, माइट, वुड, शुड. एंड वाई वी यूज़ देम?
वी यूज़ दैम टू एक्सप्रेस एबिलिटी, ऑब्लिगेशन, पॉसिबिलिटी एंड सो ऑन। हम किस लिए यूज़ करते हैं उन्हें? अपनी एबिलिटी को, अपनी ऑब्लिगेशन, ड्यूटी को शो करने के लिए, पॉसिबिलिटी, परमिशन, इनको एक्सप्रेस करने के लिए जो है हम मॉडल्स का यूज़ करते हैं। मॉडल वर्ब्स आर अनलाइक अदर वर्ब्स। जो अदर हेल्पिंग वर्ब्स है, अभी मैंने आपको डिफरेंस उनके बीच में बताया कि जो मॉडल ऑक्सिलरीज होती हैं दे डू नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट इन नंबर और पर्सन, कि वो पर्सन और नंबर के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होते हैं, जबकि जो अदर वर्ब्स होती हैं हेल्पिंग वर्ब्स वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होती हैं। सो नाउ यू कैन गिव द आंसर व्हाट आर मॉडल्स, कि मॉडल्स क्या होते हैं? मॉडल्स आर द हेल्पिंग वर्ब्स यूज विद द मेन वर्ब विच आर नॉट लिमिटेड विद देयर सब्जेक्ट्स, जो सब्जेक्ट से लिमिटेड नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए आप, आई कैन प्ले एंड ही कैन्स प्ले। सो फर्स्ट सेंटेंस इज करेक्ट, आई कैन प्ले, बट द सेकेंड सेंटेंस इज रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे कैन में एस लग गया, जबकि कैन में हमें एस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मॉडल ऑक्सिलरीज कभी भी चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट नहीं होते हैं। तो राइट सेंटेंस इज ही कैन प्ले। सो आई कैन प्ले, ही कैन प्ले, यू कैन प्ले। तो जितने भी मॉडल ऑक्सिलरीज होते हैं उनके साथ मेन वर्ब में कोई भी उनमें कोई भी चेंज नहीं होता है, उसमें एस और ई एस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। नाउ लेट्स सी द यूज़, व्हाई वी यूज़ देम। एज आई ऑलरेडी टोल्ड, टू एक्सप्रेस परमिशन, एबिलिटी, ऑब्लिगेशन, प्रोहिबिशन, lack of necessity, advice, possibility and probability. Now see the first model, shall. How to use shall. तो shall और will का यूज़ आपने टेंस में भी पढ़ा है कि फ्यूचर टेंस में हम will और shall का यूज़ करते हैं, बट एज अ मॉडल shall is used with second और third person. As a in future tense shall is used with first person. फ्यूचर टेंस में हम फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ शैल का यूज़ करते हैं, लेकिन जब हम उसे एज अ मॉडल यूज़ करते हैं तो शैल का यूज़ जो है सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ किया जाएगा। और किस लिए किया जाएगा? टू एक्सप्रेस कमांड, प्रॉमिस, थ्रेट, डिटर्मिनेशन एंड कंपल्शन। सी द एग्जाम्पल हियर, ही शैल गो देयर एट वंस, कि उसको वहाँ तुरंत जाना चाहिए, तो ये कमांड दिया है। तो यहाँ पे ही के साथ हमने क्या यूज़ किया? शैल यूज़ किया, जबकि ही के साथ हम विल यूज़ करते हैं फ्यूचर टेंस में, लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमने एज अ मॉडल यूज़ किया है तो यहाँ पे ही के साथ शैल यूज़ हो जाएगा। ही शैल बी अवॉर्डेड, अब ये प्रॉमिस किया है कि उसको अवार्ड दिया जाएगा, तो यहाँ पे भी ही के साथ शैल यूज़ हुआ। इफ़ यू डू दिस यू शैल बी डिसमिस्ड, तो यहाँ पे क्या है? थ्रेटनिंग जो है उसको धमकाया जा रहा है कि अगर तुमने ये काम किया तो तुम्हें डिसमिस कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे भी यू के साथ हम विल ना यूज़ करके क्या यूज़ करेंगे? शैल यूज़ करेंगे। ही शैल ओबे मी, यहाँ पर भी क्या है? डिटर्मिनेशन, कि उसको मुझे ओबे करना होगा, तो यहाँ पे डिटर्मिनेशन शो कर रहा है। यू शैल कम टू मीट एट 10, और तुम्हें 10 बजे मीटिंग में आना ही होगा, कंपल्शन। तो कंपल्शन को शो करने के लिए यू के साथ हमने शैल लगाया। तो शैल का यूज़ हम कहाँ कर सकते हैं? सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ, जब कोई कमांड, प्रॉमिस, थ्रेट या डिटर्मिनेशन या कंपल्शन को हमें एक्सप्रेस करना होता है। नाउ द नेक्स्ट मॉडल इज यूज ऑफ विल। विल इज़ यूज विद फर्स्ट पर्सन टू एक्सप्रेस। नॉर्मली जो आपका फ्यूचर टेंस होता है उसमें विल किसके साथ यूज़ होता है? सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ, लेकिन एज अ मॉडल विल को हम यूज़ करेंगे फर्स्ट पर्सन के साथ, आई और वी के साथ यूज़ करेंगे। क्या एक्सप्रेस करने के लिए? विलिंगनेस, प्रॉमिस, थ्रेटनिंग एंड डिटर्मिनेशन। सी द एग्जाम्पल हियर, वी विल रिक्वेस्ट हिम टू हेल्प यू। अब यहाँ पर क्या है? विलिंगनेस, किसी की हेल्प करने की हमारी इच्छा है कि हम जो है उसको हेल्प करेंगे। सो वी के साथ हम क्या यूज़ करेंगे? विल। आई विल डू एवरीथिंग फॉर माई फ्रेंड। अब यहाँ पे प्रॉमिस है कि मैं ज़रूर अपने फ्रेंड के लिए कुछ ना कुछ सब कुछ करूँगा, तो यहाँ पे भी आई के साथ हमने शैल यूज़ ना करके विल यूज़ किया, क्योंकि यहाँ पे हमने विल का यूज़ एक्सप्रेस करने के लिए क्या है? प्रॉमिस को। आई विल किल हिम, तो यहाँ पे हमने थ्रेट के लिए यूज़ किया है, तो आई के साथ हम विल यूज़ करेंगे। आई विल ओबे यू, मैं तुम्हें ओबे करूँगा। डिटर्मिनेशन, कोई दृढ़ निश्चय कि मैं तुम्हें ज़रूर ओबे करूँगा। सो यूज़ ऑफ शैल।
Now the next model is can. Can is used to show the ability, capacity, possibility and permission. एबिलिटी का मतलब क्या होता है, कोई भी स्किल आपके अंदर है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ. कैन का मतलब होता है सकना, कोई भी काम कर सकना. कैपेसिटी का मतलब मेरे अंदर इतनी स्ट्रेंथ है कि मैं इस काम को कर सकता हूँ. जैसे मैं एक हैवी बॉक्स को उठा सकती हूँ तो ये मेरी कैपेसिटी है कि मैं उसको उठा सकती हूँ. ठीक है. एबिलिटी का मतलब मेरे अंदर ये स्किल है दैट आई कैन स्पीक फ्रेंच, आई कैन टीच यू, आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. तो ये मेरी एबिलिटी है, मैं ये सब कर सकती हूँ. परमिशन के लिए भी हम जब नॉर्मली जब हम अपने फ्रेंड्स के साथ या किसी के भी साथ बात करते हैं और हमें परमिशन लेना होता है तो हम लोग वहाँ पे कैन का यूज़ करते हैं. बट अगर हमें फॉर्मली परमिशन लेनी होती है तो फॉर्मल परमिशन के लिए हम मे यूज़ करते हैं. बट अगर कैजुअली हमें कोई परमिशन लेना है तो हम वहाँ पे कैन का यूज़ कर सकते हैं. तो इनफॉर्मल वे में हम कैन का यूज़ परमिशन के लिए करेंगे. कैन आई यूज़ योर पेन, कैन आई सी योर डायरी. एंड पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी मतलब कोई संभावना, जिसकी कोई संभावना है तो वहाँ पर जो है हम कैन का यूज़ करते हैं. लेकिन ये यहाँ पे पॉसिबिलिटी जो है, पॉसिबिलिटी के लिए मे भी यूज़ होता है. तो कैन का यूज़ जो है वो फैक्ट बेस्ड नहीं होता है, जबकि मे का जो यूज़ होता है वो फैक्ट के बेस पे होता है. यहाँ पे सिर्फ एक संभावना होती है, एक गैस होता है कि हाँ ऐसा हो सकता है. लाइक एवरीवन कैन मेक मिस्टेक, कि हर किसी से मिस्टेक हो सकती है. तो कैन का यूज़ किस लिए होता है? कैन इज़ यूज टू एक्सप्रेस एबिलिटी, परमिशन, कैपेसिटी एंड पॉसिबिलिटी. यूज़ ऑफ कुड. सो कुड को हम एक तो पास्ट टेंस में, पास्ट है ये, कैन का पास्ट होता है कुड. तो कुड का यूज़ हम पास्ट की एबिलिटी को शो करने के लिए, पास्ट की कैपेसिटी को शो करने के लिए यूज़ करते हैं. जैसे पास्ट की एबिलिटी, कोई पास्ट टेंस में अगर मैंने बोला कि मैं ड्राइव कर सकती थी, तो आई कुड ड्राइव अ कार एट द एज ऑफ 16. तो पास्ट की जो मेरी एबिलिटी थी उसके लिए हम कुड यूज़ करेंगे. फिर है पास्ट में कैपेसिटी. ही कुड मूव दिस हैवी बॉक्स, कि वो इस हैवी बॉक्स को हिला सकता था. तो यहाँ पे क्या है, पास्ट की जब भी पास्ट टेंस होगा तो वहाँ पे हम कैन यूज़ ना करके क्या यूज़ करेंगे, कुड यूज़ करेंगे. कुड का यूज़ हम पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी कर सकते हैं कि क्या तुम मेरे लिए ऐसा कर सकते हो. कुड यू प्लीज़ ओपन द डोर, कुड यू प्लीज़ ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर. तो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, कुड का यूज़ करेंगे. फिर है आपका पास्ट की पॉसिबिलिटी. जैसे अभी मैंने आपको बताया था पॉसिबिलिटी, प्रेजेंट की अगर पॉसिबिलिटी है तो वहाँ पे हम कैन का यूज़ करेंगे. लेकिन अगर पास्ट की पॉसिबिलिटी है तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे कुड. इफ़ यू वर्कड हार्ड यू कुड सक्सीड. अगर तुमने हार्ड वर्क किया होता तो तुम ज़रूर पास हो सकते थे. ठीक है. तो सकने के अर्थ में जो है कुड का और कैन का यूज़ होगा. प्रेजेंट में हम कैन का यूज़ करेंगे एंड पास्ट में हम कुड का यूज़ करेंगे. सो इन दिस वे वी कैन यूज़ कैन इन प्रेजेंट एंड कुड इन पास्ट. नाउ यूज़ ऑफ मे. मे का यूज़ अभी मैंने आपको बताया था पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ होता है. जब कोई फैक्ट है, जैसे इट मे रेन टुडे, अगर देर आर क्लाउड्स इन द स्काई, बादल हैं, तो हम बोल सकते हैं कि भाई आज बारिश हो सकती है क्योंकि क्लाउड्स दिखाई दे रहे हैं, आसमान में बादल हैं. तो ये फैक्ट बेस होता है. सो इट मे रेन टुडे, शी मे कम टुडे. तो पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए यूज़ किया जाता है मे का. सेकेंड है आपका प्रे और विश. किसी को हमें विश करना है, किसी के लिए जब हम प्रे करते हैं तब भी हम मे का यूज़ करते हैं. मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू. नेक्स्ट इज़ परमिशन. सो अभी मैंने आपको बताया कि फॉर्मल परमिशन अगर हमें चाहिए होती है, जैसे लाइक इन स्कूल, ऑफिसेज, तो वहाँ पर हम मे का यूज़ ही करते हैं. मे आई यूज़ योर फोन, मे आई गो आउट. सो इन फॉर्मल वे वी ऑलवेज यूज़ मे फॉर आस्किंग परमिशन. नेक्स्ट इज यूज़ ऑफ माइट. माइट क्या होता है आपका, मे का पास्ट. यानी कि जब भी पास्ट टेंस होगा तो वहाँ पे हम पॉसिबिलिटी के लिए माइट का यूज़ करेंगे. और सेकंड जो यूज़ होता है उसका लेस. माइट का मतलब होता है लेस पॉसिबिलिटी. अगर हम प्रेजेंट में माइट का यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब होता है कि पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है, ना के बराबर है. अब जैसे एग्जाम्पल देखिए, द स्काई इज़ क्लियर, इट माइट रेन टुडे. तो स्काई जब बिल्कुल साफ़ है तो आपको पता है कि आज बारिश नहीं हो सकती है, तो शायद ही बारिश हो. लेकिन क्योंकि
नेचर है, बारिश हो भी सकती है अगर स्काई क्लियर है बिल्कुल, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, नेचर कभी भी बदल सकती है और बारिश हो सकती है। तो यहाँ पे क्या है, बहुत ही लेस पॉसिबिलिटी, बहुत कम पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे हम मे ना यूज़ करके क्या यूज़ करेंगे, माइट यूज़ करेंगे। शी इज़ नॉट वेल, शी माइट कम टू पार्टी, वो ठीक नहीं है तो शायद ही वो पार्टी में आए। इसका मतलब उसकी आने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम है। तो लेस पॉसिबिलिटी के लिए हम यूज़ करते हैं माइट इन प्रेजेंट। अगर पास्ट में हम यूज़ कर रहे हैं, पास्ट टेंस में, तो हम मे, जहाँ पे मे यूज़ करना होता है वहाँ पे हम माइट करते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, ही सेड यू मे गो नाउ। और अगर हम इसको इनडायरेक्ट में करते हैं तो इनडायरेक्ट में क्या होता है, आप हमें जो भी प्रेजेंट होता है उसको हम पास्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ही सेड दैट ही माइट गो देन। तो मे का हमने यहाँ पे पास्ट कर दिया माइट। तो इनडायरेक्ट स्पीच में भी हमेशा मे का माइट यूज़ होगा। यूज़ ऑफ शुड। शुड हमारा क्या होता है, पास्ट ऑफ शैल। शैल का जब हम पास्ट यूज़ करते हैं तो दैट इज शुड। तो शुड का हम जब यूज़ करते हैं चाहिए के अर्थ में करते हैं कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तो वो वहाँ पर हम एडवाइस यूज़ करते हैं। किसी को भी हम फ्री एडवाइस देते हैं, तुम्हें यहाँ जाना चाहिए, तुम्हें ये खाना चाहिए, तुम्हें ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो जो सिंपल एडवाइस हम देते हैं उसमें हम क्या यूज़ करेंगे, शुड का यूज़ करेंगे। तो शुड इज़ यूज टू एक्सप्रेस सिंपल एडवाइस। यू शुड कंप्लीट योर वर्क, यू शुड नॉट लाफ एट हिज मिस्टेक्स। सेकेंड इज मोरल ऑब्लिगेशन। जो मोरल ड्यूटीज़ होती हैं उसके लिए भी हमें शुड का यूज़ कर सकते हैं कि तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये एक हमारी मॉरल ड्यूटी है कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो वी शुड नॉट टेल अ लाई। वन शुड डू वंस ड्यूटी। हर किसी को अपनी अपनी ड्यूटी अपना अपना कर्तव्य करना चाहिए। तो शुड का जो मीनिंग हिंदी में निकलता है वो होता है चाहिए, कि हमें ऐसा करना चाहिए। फिर है पास्ट ड्यूटी। जो पास्ट में अगर आपने कोई काम तुम्हें ऐसा करना चाहिए था तो वहाँ पर भी हम क्या यूज़ करेंगे, शुड का यूज़ करेंगे पास्ट की ड्यूटी को शो करने के लिए। आई शुड हैव अटेंडेड द मीटिंग, मतलब मुझे मीटिंग अटेंड करनी चाहिए थी। ही शुड हैव पेड द मनी ऑन टाइम, उसे टाइम पर मनी पे करना चाहिए था। तो पास्ट में अगर हम पास्ट की ड्यूटी के बारे में बात कर रहे हैं कि ऐसा करना चाहिए था, तो वहाँ पर भी हम शुड का यूज़ करते हैं।